Good morning, everybody. Good I'm At- morning. Good morning, sir. Good morning. I'm Atul Thank you. Nagarkar, librarian, Dudh Sakar Mahavidyalaya, Bidri, District Kolhapur, Maharashtra, and I'm very thankful coordinator Dr. Sudhir Nagarkar and Shri Amol Thorat sir. And today for this function or this program, from the busy schedule for the inauguration, our principal, respected Professor Dr. Sanjay D. Patil sir, who attended and inaugurated today's function. And their permission, their inspiration always with us. I welcome for this event. Again, I welcome respected principal, Major Dr. Ashok V. Giri sir, principal of Amdar Shashikant Shinde Mahavidyalaya Medha, district Satara. I also welcome CDC member of Amdar Shashikant Shinde Mahavidyalaya Medha, respected Dr. Pramod Ji Ghadge sir, who always supports us for innovative activities and giving blessings. I also welcome Principal Dr. Chandrakant Salunkhe sir, Principal Krishna Mahavidyalaya, Retre Budruk, District Satara. Sir always guides us for this kind of programs and their blessings always with us. I also welcome the coordinator Dr. Sudhir Nagarkar, who always believe for the innovations, who always believe using ICT, who always believe to guide the students. I also welcome Shri Amolji Thorat sir, who continuously taking efforts for the innovative events. Last month, he has taken the efforts for the state level book review in online mode. I also participated in that, and most welcome all the participants all over the India. Some of my friends, some of my colleagues, some of my students, and some are professionals. We have got the response from Maharashtra, we have got the response from Gujarat, Goa, as well as Arunachal Pradesh. Huge response, you got it. I'm damn sure about it. Today, this webinar definitely give good inputs for your coming NET examination. Now I am going to start or share my presentation. Sudhir sir, is it visible? Yes, actually, it is visible. It is visible Okay. right now. Visible. हॅलो. हा बोलतो नंतर मी जरा व्याख्यानात. Okay. ओके. सुधीर सर, मधून मधून तुम्ही मला रिस्पॉन्स करत जावा, कारण माझ्याकडे Oh, माझी स्क्रीनच फक्त मला दिसतीये. okay. Yes, sir. So I welcome again you all that today's topic is UGC NET Paper 2 Library and Information Science.
And most important, the most important thing is the very simple question that net, what is the full form of NET? National Eligibility Test, and SET, State Eligibility Test, or we can also say SLET, State Level Eligibility Test. There is huge difference between two exams. Sometimes people or students say that the syllabus is same, but yes, I know that the syllabus is same, but the difference is of offline mode and online mode. NET carries online mode and SET carries offline mode. And the huge difference in that, basically, the question paper. The question paper is tougher in NET and it is lower in uh, for the SET. If you will see the June 2025 question paper of NET, especially paper 2, Library and Information Science, you will find the difference between them. I will show by example in further slides. There's so many aspects I have put it in the presentation, but first thing, what benefits should I get while I clearing the NET? So first thing and most important thing, you are going to become in or you are going to enter in noble profession. Why I could say noble profession? Because if you will see the big personalities in the world, they were teacher. First they were teacher and then they were become philosopher. They were become politicians. They were become eminent personalities. So if you will clear the NET, you will enter in the profession as assistant professor. You can join, and this is noble profession. You should keep in your mind. And the second thing, while you are clearing NET, you will get you can become researcher in any national institute or university. You can get admission in PhD without entrance. You can get scholarship or fellowship for research work. Dear participants, you know that, or you might know about it. The research fellowship you can get in monthly 52,000 rupees in a month, like you are going to join a job. And this is the benefit of NET, clearing NET exam. And the most important thing is you get additional knowledge. While you are preparing your NET exam, you are getting day by day or minute by minute, you are getting additional knowledge. And this knowledge, definitely, I am assured about it. This knowledge, it will keep up in your throughout life and get more job opportunities. These are the benefits. While we will see the benefits while clearing the NET, then our motivation should increase. And that's what I put it here. What is the nature of examination? National eligibility test usually, not had a hard and faster twice in a year, but usually it takes two attempts and MCQ type questions to be asked. It is very simple examination. Earlier, before 2011, it was the mode of descriptive, and it was tougher than this examination. It carries two papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 general paper. It is common for all. It carries 10 units. I would not concentrate on paper 1 because today's session is of paper 2. Same paper 2 also carries 10 units. And 10 units, I will give you one mnemonic how to remember 10 units in a minute. Paper 1, it comprises 50 questions and it is for 100 marks. Paper 2, it comprises 100 questions and it is of 200 marks. I already told you NET exam, it is online mode and the languages are English and Hindi.
And set examination in I could saying here at a Maharashtra point of view, it is offline mode and pen and paper, and the languages are English, Marathi. And if your principal subject is Hindi, then it can be Hindi. How to face net exam successfully? When you are going to appear the examination, when you enter in the examination hall, what your mind condition is. Just I'm giving you some tricks here. Cool your mind. When you enter in the exam hall, close your eyes for few minutes before starting the exam. When you close your eyes, you are getting or you are trying to set your mind in a cool way. Try to convince your mind it is not the first paper, it is second one. I'm saying here about second paper. So not to worry about timings, because we all know that first paper is of related to timing and time board is there. We should take care of timing for first paper, but for second paper in special, with the reference of specially library and information science, huge timing for the second paper. So not to worry about timings. While start your exam, take a first round. I have put it here. CRC. What is CRC? First confirm round, then review round, and complex round. These are three rounds, and that is the CRC formula. While you are damn sure about your answers, that is confirm round. You should give the answer immediately if you are sure. What is a review round? In review round, if you are confused, little bit confused about should I go with this answer or shouldn't I go with this answer, then you should uh, keep that question for review round. And complex round, it is more harder. It is more harder. Don't understand anything about this question. Just leave it. And first round, confirm round, just imagine if you are going to solve 100 questions and for in first round you have solved 50, means 100 marks you are पक्के आपके 100 marks हो गए पक्के. Okay, in review round if you will solve 25, then 25 approximately you are getting that marks also. In complex round means what? The questions which are very sure, that increases your confidence. That is why confirm round is necessary. Basic tricks to clear net set in first attempt. Why I'm saying this? Why I'm saying this? Why I'm saying this? Because I have completed or I have qualified in first attempt net and set both. Okay, just I'm giving tricks here. You can click this or I will share this presentation afterwards. First and the foremost important is take out the printout, the syllabus and read every day. Take it, print out and syllabus. Read every day. In where you are going, uh, always going like in front of mirror, nearby mirror, you should put your syllabus and every day you read it. Take current previous years 4 question papers and solve it. When you are going to solve the 4 question papers, definitely you understand what is the relation between units and questions. Take all options into consideration and prepare your own notes. Take all options into consideration and prepare your own notes. For your own notes, as per the questions asked in the question paper, refer the books. And here, exactly opposite method I'm using. When you will go to the question paper, you will find the question, you will find the options. You will just go through the options and clear all the doubts or make the notes of it. Times demand online resources. Many people they are suggesting not to use mobile, but in opposite way I would suggest that as much as possible you use mobile or laptop or gadgets. Why?
because I trust if you will use that mobile or laptop in a proper way for the study, then automatically you will definitely get success. Make your own audio recording and listen as much as possible. Lata Mangeshkar's songs very nicely we listen, but our songs, yourself songs, also I'm not saying songs, but your recording, you should listen more and more. First, you should create your recordings and then listen. I'm here, uh, put it one question before sharing or before discussing the all the sub units of paper 2. I put it here, for example, one question, and the question asked in June 2025. According to OCLC research report, know your community and its needs is the rephrasing of which law of Ranganathan? And the options are first law, second law, third law, and fourth law. आप उस प्रश्न को अगर बारीकी से पढ़ेंगे तो आपके समझ में आया होगा या आएगा कि यह प्रश्न किस टॉपिक से संबंधित है. ये तो लॉज है, सेकेंड लॉ है, फर्स्ट लॉ तो यूनिट नंबर 2 है. बराबर, बिल्कुल यूनिट नंबर लॉज एंड लेजिस्लेशन यूनिट नंबर 2 से रिलेटेड है. अब यहां क्या कहा है? नो योर कम्युनिटी एंड इट्स नीड्स. कम्युनिटी यानी रीडर, कम्युनिटी यानी रीडर, योर यूजर्स, योर पैट्रॉन्स, ओके, एंड इट्स नीड्स, और उनको क्या चाहिए, कौन सा बुक चाहिए, उनके डिमांड क्या है, ये नीड्स है. तो हमारा सेकेंड लॉ कौन सा है? रंगनाथन जी ने जो 5 लॉ बताए हैं उसमें से पहला लॉ क्या है? बुक्स आर फॉर यूज. I will not utter here 5 laws, only second law. What is the second law? Every reader his book. और यहां किसकी बात हो रही है? कम्युनिटी यानी रीडर. तो सेकेंड लॉ इससे रिलेटेड है. इस प्रकार का लॉजिक डेवलप आपका होना चाहिए. मतलब यहां थर्ड लॉ फोर्थ लॉ देखने की जरूरत भी नहीं है. नो योर कम्युनिटी एंड इट्स नीड्स, ये ऐसे रिसर्च रिपोर्ट ओसीएलसी का, उसमें एक वाक्य दिया है, वह किससे संबंधित है? सेकेंड लॉ से संबंधित है. और एक प्रश्न मैंने यहां रखा है, डेलिबरेटली आई हैव पुट इट हियर, दिस क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज आल्सो आस्क्ड in June 2025 in NET examination paper 2. What is the question? Question, select the correct combination, means match the following. Okay, तो आपको जोड़ियां लगानी है. अब उन्होंने क्या दिया है? फैक्ट्स ऑन फाइल क्या है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग क्या है, विलिंग प्रेस गाइड क्या है. जहां पर मैंने हाइलाइटर लगाया है वहां वो करेक्ट आंसर है. ऑलरेडी आई हैव गिवन द आंसर, लेकिन उसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताऊंगा. उसका लॉजिक ये है कि हम आपको पता है कि फैक्ट्स ऑन फाइल ये न्यूज डाइजेस्ट है. क्या है? न्यूज डाइजेस्ट है. वर्ल्ड ऑफ लर्निंग ये डायरेक्टरी है. विलिंग प्रेस गाइड यह पीरियोडिकल डायरेक्टरी है. ओके, तो आपको यह प्रश्न पड़ा होगा कि कॉन्करेंडेंस क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या है? बुक्स इन प्रिंट क्या है? इंडेक्स नहीं है तो क्या है? अगर आप यहाँ रॉन्ग कह रहे हो, बुक्स इन प्रिंट इंडेक्स नहीं है तो क्या है? तो ऊपर देखिए, ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है बुक्स इन प्रिंट इज अ लीडिंग डेटाबेस. बुक्स इन प्रिंट क्या है? प्रोक्वेस्ट का एक डेटाबेस है. किसके लिए है? फॉर लाइब्रेरीज, फॉर पब्लिशर्स, फॉर रिटेलर्स, हेल्पिंग फाइंड टाइटल्स, फॉर्मेट्स, ऑथर्स एंड परचेस पॉइंट्स. कॉन्करेंडेंस क्या है? अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो क्या है? इन लाइब्रेरी साइंस ए कॉन्करेंस इज अल्फाबेटिकल इंडेक्स है. What is concurrent concordance? It is alphabetical index. तो इस प्रकार से आपको नोट्स प्रिपेयर करने होंगे. मैंने इसलिए यहाँ पे ये सारे नोट्स बनाए हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस प्रकार से नोट्स बनाने पड़ते हैं. आप कहेंगे अतुल सर तो बोल रहे थे कि ऑप्शन से नोट्स बनाना, ऑप्शन से नोट्स बनाना किस प्रकार से बनाते? इस प्रकार से बनाएंगे. उसके बाद I will discuss here another question which is asked in June 2025. Match the following. एक साइड में उन्होंने टेक्नोलॉजी दिए है और एक साइड पे उन्होंने प्रपाउंडर दिए है.
और सारे टेक्नोलॉजी आज की तारीख में हम सब भी यूज कर रहे हैं. I use barcode technology in my library with the help of Koha. Some are using RFID technology in their library. QR code we are using for payment, UPI, like anywhere. मतलब वो तो बात ही नहीं बनेगी कि QR कोड का यूज हम बताएंगे आपको, आप हर दिन यूज करते हो. बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, आप जब कॉलेज में जाते हो तो वहां पे आप अगर थंब लगा रहे हो तो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी का आप यूज कर रहे हो. लेकिन ये टेक्नोलॉजी किसने इन्वेंट की है, उनके प्रोपाउंडर कौन है, तो इसकी जोड़ियां लगाने के लिए इन्होंने दिया है. बारकोड टेक्नोलॉजी, इट प्रोपाउंडर नेम इज नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड एंड बर्नार्ड सिल्वर. RFID टेक्नोलॉजी, रे थ्योरीज रे टैग. QR कोड, डेंसन वेव. बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी, सर विलियम हिर्शचेल. प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, आगे चलेंगे. ये याद रखना है आपको, QR कोड किसने बनाया है उसका नाम कम से कम हमें याद होना चाहिए. डेंसन वेव ने बनाया. उसके बाद एक जो हमारे स्टूडेंट है उन्होंने पूछा, सर ये इस बार तो मतलब पसीना छूट गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि इस बार कोरन क्लासिफिकेशन की ओर बहुत ज्यादा उन्होंने एम्फोसिस किया है, तो उनको ज्यादा लगा कोरन क्लासिफिकेशन पे आया है. तो उसमें से एक प्रश्न मैंने यहाँ पे लिया है, मैच द कैनन्स ऑफ क्लासिफिकेशन विद द नंबर ऑफ एसोसिएटेड कैनन्स. तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, इन्होंने जो कैनन्स दिए हैं, अब पहला प्रश्न ये उठता है कि कैनन्स मतलब क्या है, व्हाट इज कैनन्स? कैनन्स नथिंग बट इट इज ए रूल्स, कंडीशन. इसे हम कैनन कहते हैं. कैनन ऑफ आइडिया प्लेन मतलब आइडिया प्लान के रूल, वर्बल प्लेन के रूल, नोटेशनल प्लेन के रूल कितने दिए हैं. तो यह आपको याद ही रखना होगा. कैनन ऑफ आइडिया प्लेन के 15 है, उसके बाद कैनन ऑफ वर्बल प्लेन के 4 है, कैनन ऑफ नोटेशनल प्लेन के 24 है. ये सारे 43 हो गए. इसको आप अगर मिलाएंगे तो एडिशन करेंगे तो 43 हो गए. लेकिन ये 3 भी आपको याद रखना है. यूजुअली स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि कैनन्स विच आर गिवन बाय द एस.आर. रंगनाथन, टोटल कैनन्स आर 43, but here they have added 3 canons of book classification and it is 3. So the second number answer is correct. बहुत बार ये भी प्रश्न पूछा गया है आपको, ओंटोलॉजी. ये समझ में नहीं आता कि ओंटोलॉजी क्या है. हमेशा ये ओंटोलॉजी का प्रश्न बहुत बार इससे पहले भी पूछा गया है. ओके, ओंटोलॉजी इज व्हाट, एंड आई हैव पुट इट हियर द आंसर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स. इसका क्लासिफिकेशन, हमारा क्लासिफिकेशन जो फिजिकल क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन सी स्कीम यूज में लाई जाती है वो तो है, जैसे सीसी है, जैसे यूडीसी है, जैसे डीडीसी है. तो ओंटोलॉजी जो इंटरनेट बेस्ड डॉक्यूमेंट है उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए ओंटोलॉजी का यूज होता है. अब आएंगे हम अपने सिलेबस की ओर. जैसे मैंने कई बार आपको रिपीट भी होता होगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो पहले मेरा लेक्चर उन्होंने सुना होगा, और यह मैं अभी ज़्यादा टाइम यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ये इससे पहले भी, लेकिन जो दोज आर न्यू इन दिस लेक्चर, दे शुड नो अबाउट व्हाट इज द ट्रिक to remember 10 units in a minute, and the acronym is ILS SO MT ART, and it is very minutely I have prepared this by I for information, that is related to, or that is first unit of paper number 2. L for laws and legislations, S for sources, S for services, O for organization of knowledge, and this is also organization of knowledge. जैसे आपको सीसी के जो प्रश्न पूछे गए हैं इस जून 2025 में, वो सारे प्रश्न ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज में आते हैं. जैसे कि क्लासिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज का पार्ट है,
कैटलॉगिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज का पार्ट है। स्टैंडर्डाइजेशन ये भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज का पार्ट है। तो ये जो पांचवा यूनिट है उसको आप बारीकी से समझेंगे तो आपको नेट और सेट का भी पेपर आपको इजी लगेगा। एम फॉर मैनेजमेंट, लेकिन अगर मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट लिखा है, ये एमबीए का मैनेजमेंट नहीं है, ये लाइब्रेरी मैनेजमेंट, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये टेक्नोलॉजी फॉर लाइब्रेरी, ऑटोमेशन फॉर लाइब्रेरी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद 9th यूनिट जो है वो रिसर्च है। उसके बाद टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज है। तो टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, ये सारे जो यूनिट है, जैसे यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक, ये आपको इस एक्रोनिम से याद रखने में मदद होगी। इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन एक ही टर्म है, लेकिन बहुत बार ये ऐसा होता है कि वो कंफ्यूज कर देती है। किस प्रकार से कंफ्यूज कर देती है? ये जो 10 फर्स्ट यूनिट में इंफॉर्मेशन में सारे 10 यूनिट्स आ गए हैं, इसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इट्स सेइंग। डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम। आई विल रिपीट, डेटा इज रॉ मटेरियल, रॉ डेटा। When data is processed, it becomes information. When information processed, it becomes knowledge. And when knowledge processed, it becomes wisdom. And I always trust on the statement, knowledge speaks, wisdom listens. हमेशा ये कहा जाता है कि जिनके पास ज्ञान है वो बोलते हैं, जिसके पास, जैसे मराठी में कहा जाता है, ज्ञान आहे ते बोलतात आणि शहाणपण आहे ते ऐकतात। जो ज्यादा सुनेगा वो अच्छी तरह से बढ़ेगा। दूसरा जो यूनिट है इंफॉर्मेशन लाइफ साइकिल। इंफॉर्मेशन कैसे जनरेट होती है, उसको कैसे, किस प्रकार से हम कलेक्ट करते हैं, स्टोर करते हैं और डिसेमिनेट करते हैं। डिसेमिनेट करना यानी रिट्रीव करना, यानी लोगों को देना। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, सुधीर सर। हाँ यस सर। हाँ व्यवस्थित, हाँ चालला ना, स्पीड व्यवस्थित आहे ना सर? ओके, पार्टिसिपेट। ओके ओके Very good going, sir. ओके सर। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का रोल क्या है? इंफॉर्मेशन का रोल क्या है? इंफॉर्मेशन इन प्लानिंग, इंफॉर्मेशन इन मैनेजमेंट, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चर, एजुकेशनल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब अगर बात करेंगे इंफॉर्मेशन, जो आज जो चल रहा है, जैसे नॉलेज सोसाइटी है, तो नॉलेज आज आपके पास जितना ज्यादा नॉलेज होगा उतना उतना आप ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में। तो अगर इंडिया को भी ग्रो करना है तो नॉलेज बहुत होना चाहिए लोगों के पास, तो ही सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकती है। और हमारा जो रोल है, जैसे इंफॉर्मेशन साइंस चौथा सब यूनिट है, ये इंफॉर्मेशन साइंस एक क्रूशियल रोल निभाता है। रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स, इंफॉर्मेशन सोसाइटी एंड नॉलेज सोसाइटी। कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन जो टॉपिक है वह फर्स्ट पेपर में भी आपको आएगा, और वहां भी आपको बहुत सारे मार्क्स वहां से आप इकट्ठे कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ये जो पेपर 2 का में आता है, उसमें भी आपको कॉमन स्टडी करना होगा। यहाँ पे जैसे कम्युनिकेशन की कंसेप्ट है, कम्युनिकेशन के टाइप है, थियरीज है, मॉडल्स है, चैनल्स है, बैरियर्स है, ये सब आपको याद रखना होगा। शेनॉन और वीवर के तो बहुत सारे क्वेश्चंस है, जो कि मैथमेटिकल मॉडल उसे कहा जाता है। इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री, जनरेटर्स, प्रोवाइडर्स एंड इंटरमीडियरीज। ये जो इंटरमीडियरीज प्रोवाइडर्स जो है, वो डेटाबेसेस, आज जो सब जगह पे ये बात हो रही है कि स्कोपस में आपका पेपर होना चाहिए, ये सब इंटरमीडियरीज है, ये सब प्रोवाइडर्स है। आईपीआर एंड लीगल इश्यूज, ये भी आपको पता होना चाहिए। एज अ लाइब्रेरियन यू शुड कैटेगराइज द लीगल इश्यूज, यू शुड कन्वे, यू शुड ट्रीटीज भी आपको पता होना चाहिए, लॉज भी आपको पता होने चाहिए। अब प्लेजरिज्म की कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। पहले तो ऐसे होता था कि प्लेजरिज्म 30% तक चल जाता था। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं और उसमें प्लेजरिज्म बिलो 30 आ जाता था, तो भी आपका थीसिस एक्सेप्ट हो जाता था। लेकिन आपके अब ये नहीं है, अब ये बिलो 10% होना चाहिए। मतलब ये जो है,
ये प्लेजरिज्म अच्छी बात भी नहीं है। दूसरों का कॉपी करके आपका साहित्य बन जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं होगी एथिकली। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सब ये इंफॉर्मेशन इस यूनिट में आ जाता है। एनकेसी लास्ट सब यूनिट है। तो यहाँ देखिए, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न मैंने यहाँ पे पूछा है, जो कि ये जो जैसे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे मैंने पर्पल कलर में मॉडल्स लिखा है, और आगे ये प्रश्न भी उससे संबंधित ही है। प्रश्न क्या है देखिए, अरेंज द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मॉडल्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन देयर इंट्रोडक्शन। मतलब ये यहाँ पे तय होता है कि ये जो मॉडल डेवलप हो गए हैं, तो पहला मॉडल कौन सा आया था, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, उसका जो सीक्वेंस है, ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस आपको लगाना है। क्रोनोलॉजिकल यानी पीछे से आगे जाना है आपको, पास्ट से प्रेजेंट तक। इस प्रकार से आपको ऑर्डर लगानी होती है। तो जैसे मैंने शेनॉन एंड वीवर मॉडल, ये जो पहला मॉडल आ गया था कम्युनिकेशन में। दूसरा मॉडल आ गया स्क्रम का, इंटरैक्टिव मॉडल आ गया था। उसके बाद जैकबसन का मॉडल आ गया था, लेकिन रिले एंड रिले का मॉडल आ गया था, और लास्ट में बर्लोज SMCR मॉडल आ गया था। लेकिन ये मॉडल के नाम पता होने ही चाहिए, इसके अलावा इसके काम भी पता होने चाहिए, तभी आप जाकर इसमें अगर दूसरा भी प्रश्न वो पूछते तो भी आपको आंसर देना आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द यूजीसी प्लेजरिज्म रेगुलेशन व्हाट इज द पेनल्टी ऑफ लेवल 2 प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का परसेंटेज उन्होंने यहाँ पे दिया है, कितना परसेंटेज है, 40 to 60%। देखिए, आपका अगर प्लेजरिज्म 40 to 60% आएगा तो आपको किस प्रकार का प्रोविजन उन्होंने लिखा है, आप डिबार हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, डिबार हो सकते हैं। डिबारिंग द स्टूडेंट फ्रॉम सबमिटिंग अ रिवाइज्ड स्क्रिप्ट फॉर 1 ईयर। 1 साल आप उसको दोबारा सबमिट नहीं कर सकेंगे, आपको 1 साल के लिए क्या होगा, पेनल्टी, डिबार कर दिया जाएगा। तो ये प्रश्न भी जो यहाँ पे है, प्लेजियारिज्म 8वां जो सब यूनिट है उससे संबंधित है। आपको यह एबिलिटी जब आएगी ना कि जो प्रश्न है वो किस यूनिट से संबंधित है, तो आपका बहुत अच्छा लॉजिक डेवलप हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये प्रश्न भी हमने देखा है। अब यूनिट नंबर 2 है, जिसमें हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, टाइप्स ऑफ लाइब्रेरीज, लाइब्रेरी लेजिस्लेशंस, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस प्रोफेशन। मैं तो ये सब पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको बस उसमें से हाईलाइटेड जो बातें हैं वही बताऊंगा। प्रोफेशनल एसोसिएशन, उसमें यासलिक, याटलिस, इफ्ला, ALA, सिलिप, एसलिप, SLA, UGC, RRLF, यूनेस्को आदि जो एजेंसीज है, ये जो प्रोफेशनल एसोसिएशंस है, उसके बारे में आपको यहाँ जानकारी लेनी होगी। उसके बाद लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एजुकेशन इन इंडिया, लाइब्रेरी पब्लिक रिलेशंस एंड एक्सटेंशन एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ यूजर्स। अब यूजर स्टडी, यूजर एजुकेशन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी, बहुत सारी जगह पे UGC इंसिस्ट कर रही है कि आपको यूजर को इंफॉर्मेशन लिटरेसी के प्रोग्राम्स देने हैं। बहुत सारे लाइब्रेरी ये कोशिश भी कर रहे हैं कि उसका सिलेबस बनाया जाए और लोगों को इंफॉर्मेशन लिटरेट करना होगा। और आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज होगा अभी इससे आगे। कौन सा चैलेंज होगा, इंफॉर्मेशन लिटरेसी में आपको AI भी सिखाना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो अलग टॉपिक अभी ऐड होगा। शायद नेक्स्ट एग्जाम में आपको AI के भी प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि AI इज द पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी। तो यहां इससे संबंधित एक प्रश्न मैंने रखा है जो कि जून 25 में पूछा गया है। अब प्रश्न को हमेशा पढ़ते समय आई विल ऑलवेज इंसिस्ट एवरी क्वेश्चन शुड रीड इन अ ट्वाइस। आपको अगर प्रश्न इजी भी लगता हो तो भी 2 बार पढ़ना चाहिए, ओके। क्या प्रश्न है, मैच नेशनल लाइब्रेरी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विथ इट्स ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। और पहला जो है नेशनल लाइब्रेरी है और ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट दिया है। तो वर्ल्ड में सबसे बहुत बड़ी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, उसकी स्थापना वर्ष कौन सा है, 1800। उसके बाद नेशनल डायट लाइब्रेरी, उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1948 है। उसके बाद नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जर्मनी 1912 में
स्थापित हो गई थी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया 1960 में। अगर बात कर यहाँ पे देखी जाए तो यूएसए सबसे आगे है और ऑस्ट्रेलिया सबसे पीछे है। ओके, इस प्रकार से आपको कुछ ट्रिक्स बनाने होंगे। यह जो प्रश्न है, यह जो यूनिट है सोर्स का, देखिए ILS 100, उसमें ILS यस जो है, तीसरा यस जो है, ये यस को मैंने यहाँ पे रेड कर दिया है ताकि आपको समझ में आए कि ILS 100 MTR किस प्रकार से उसकी जर्नी हो रही है। तो यहाँ पे सोर्सेस, लाइब्रेरियन को सोर्सेस रखना ही चाहिए, याद रखने चाहिए। क्यों? आपको अगर पता होगा कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, देन ओनली यू आर केपेबल टू गिव द सोर्सेस, information of sources to the users. Otherwise, what will happen? You couldn't give the services related to the sources. Okay, information sources, its nature, characteristics, types and formats, sources of information. और इसमें ये रिसर्च को भी रिलेट करता है, जैसे प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, टर्शियरी सोर्सेज, डॉक्यूमेंटरी एंड नॉन डॉक्यूमेंटरी। पीएचडी में हमेशा एक सर्वे मेथड का यूज किया जाता है जो कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का एक एग्जाम्पल है। और प्राइमरी डेटा जब कलेक्ट करते हैं, जैसे क्वेश्चनर बनाई जाती है और लोगों से भर के आप डेटा कलेक्ट करते हो, तो ये प्राइमरी सोर्स हुआ। सेकेंडरी सोर्स, जैसे आप जर्नल में कुछ पढ़ रहे हो, दैट इज सेकेंडरी सोर्स। और टर्शियरी सोर्स, जो बिब्लियोग्राफी की बिब्लियोग्राफी है, दैट इज टर्शियरी सोर्स। तो इस प्रकार जैसे इंडेक्सिंग है, उस प्रकार आप जब ये तीनों डेटा का यूज करके आपका रिसर्च भी कर सकते हैं, यूजर को जानकारी भी दे सकते हैं। सोर्स आपको पता होनी चाहिए। प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स, इसमें प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक, उसमें पेटेंट से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है, मैं आपको ये दिखाता हूं। हाँ, दिस क्वेश्चन, क्या प्रश्न है? आइडेंटिफाई इंडियन पेटेंट डेटाबेसेस फ्रॉम द लिस्ट। और उसमें से दो है, इंडियन पेटेंट डेटाबेसेस दो है, लेकिन दो नहीं है। ओके, तो 5 दिए हुए हैं, उसमें से 2 ही है। वह कौन कौन से है? तो उनके नाम है इन पास और पेट स्टेट। ये 2 है जो कि इंडियन पेटेंट डेटाबेसेस है। बी एंड सी आर करेक्ट ओनली। तो यहां पे हम जाएंगे, ये जो पेटेंट्स का है प्राइमरी इंफॉर्मेशन सोर्स है, उसके बाद स्टैंडर्ड्स भी है, थीसिस भी है, डिसर्टेशन भी है, एटसेट्रा। सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सोर्स में प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक दोनों आ जाते हैं। तो आपकी सारी डिक्शनरीज, सारी इंसाइक्लोपीडियाज, बिब्लियोग्राफीज, indexing, abstracting, statistical sources, handbook and manuals, these are comes under secondary information sources. And tertiary information sources, that is directories, yearbook, biographies, almanacs. और यहाँ पे एक और भी जोड़ सकते हैं आप, बिब्लियोग्राफी ऑफ बिब्लियोग्राफीज। तो इस प्रकार से टर्शियरी सोर्सेस भी होते हैं, यह भी आपको याद रखने होंगे। उसके बाद रेफरेंस सोर्सेस, इसमें बिब्लियोग्राफिकल भी होते हैं, बायोग्राफिकल भी होते हैं, एजुकेशनल भी होते हैं, लैंग्वेज एंड ज्योग्राफिकल भी होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सोर्सेस, सब्जेक्ट गेटवे, वेब पोर्टल्स, बुलेटिन बोर्ड, डिस्कशन फोरम्स। अब डिस्कशन फोरम का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस है। तो जैसे स्वयं का अगर आपने कभी प्लेटफॉर्म देखा होगा, तो उसमें एक फोरम रहता है, जिसको जो भी प्रश्न मन में उठता है वो वहां फोरम में लिख देता है। जिस फोरम के जो ग्रुप होता है उसमें से किसी मेंबर को अगर उसका आंसर पता है तो वो अपने तरफ से उसका आंसर भी दे सकता है। और आपके जो टीचर है वो भी आपको आंसर वहां फोरम में दे सकते हैं। ताकि फोरम का यूज क्या है, आपका आंसर, आपको दिया गया आंसर जो है, मान लो कि उस ग्रुप में 100 मेंबर्स है, तो उस 100 मेंबर्स को बाद में बताने की नौबत नहीं आती है, उनको समझ में आता है कि क्या है। इस प्रकार डेटाबेसेस, बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस, न्यूमेरिक, फुल टेक्स्ट, मल्टीमीडिया, ओपन एक्सेस डेटाबेसेस। बहुत बार ये प्रश्न उठता है, स्कोपस
स्कोपस में पेपर होना चाहिए। स्कोपस में बहुत ऐसे लाइब्रेरियन मैंने देखे हैं जो कि स्कोपस में जाकर फुल टेक्स्ट डेटा ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह व्यर्थ कोशिश होती है, क्योंकि वह डेटाबेस जो है वो बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस है। वहां खाली बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स आपको मिलेंगे, ना कि फुल टेक्स्ट पेपर वहां मिलेगा। और एक है वेब ऑफ साइंस, ये भी बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, लेकिन आप वहां अगर फुल टेक्स्ट डेटाबेस की चाह रखते हो तो ये व्यर्थ होगा। तो ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है, कौन सा न्यूमेरिक डेटाबेस है, फुल टेक्स्ट डेटाबेस कौन से है, यह भी आपको हमको पता होना चाहिए। ओके, इंस्टीट्यूशनल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस, ये सारे इसमें सोर्सेस में आ जाते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ रेफरेंस सोर्सेस एंड वेब सोर्सेस। एज अ लाइब्रेरियन वी शुड बी एबल टू इवैल्यूएट द रेफरेंस सोर्सेस। हमें इवैल्यूएट करना होता है। तो ये प्रश्न, इससे एक प्रश्न मैंने यहाँ पे जून 2025 में उठाया है। मैंने इस वजह से डेलिबरेटली आई हैव पुट इट हियर, द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू लाइब्रेरी साइंस एंड पेपर 2 व्हिच आर आस्क्ड इन June 2025, because these questions are very current questions. क्वेश्चन पूछा गया था, which visualization feature in Web of Science helps identify relationships between citing and cited articles? और ऑप्शन दिए गए थे साइटेशन नेटवर्क ग्राफ, साइटेशन रिपोर्ट, रिसर्च इंपैक्ट स्कोर, जर्नल मैट्रिक्स मैप। और यहाँ पे जो है ये साइटेशन नेटवर्क ग्राफ आंसर है। अब ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको इन डेप्थ स्टडी की जरूरत है, यहाँ कोई लॉजिक नहीं चलता। आपको ये पता होना चाहिए कि वेब ऑफ साइंस क्या है, उसका जो इंटरफेस है उसे 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 आपको विजिट करना होगा, तभी आपको जाकर ये रिलेशनशिप जो है साइटिंग एंड साइटेड आर्टिकल्स का, ये आपको पता चलेगा। आइडेंटिफाई, ये प्रश्न पहले ही देख चुके हैं, उसके बाद देखेंगे सर्विसेज। ILS, सो में सब पहला यस, ये जो है सर्विसेज है। अब ये जो दोनों टॉपिक है एक दूसरे से निर्भर या रिलेटेड है। किस प्रकार से संबंधित है? क्योंकि अगर सोर्सेस पता होगा तो ही सोर्सेस की सर्विस आप अच्छी तरह से दे पाओगे। तो उसमें भी कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस है। कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस का एक एग्जाम्पल आपको अगर देना है तो वह पब्लिक लाइब्रेरी आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पब्लिक लाइब्रेरी इट इज क्लोज रिलेटेड टू कम्युनिटी एंड दे आर डायरेक्टली गिविंग सर्विसेज टू कम्युनिटी। एंड हमारे पार्टिसिपेंट्स में केजे चौकसी लाइब्रेरी जो गुजरात में, बड़ौदा में, उनकी जो लाइब्रेरी है वो पब्लिक लाइब्रेरी है, लेकिन वह लाइब्रेरी सर के साथ हम 3 दिन थे, नरेंद्र सोनार सर है गुजरात से, उनकी लाइब्रेरी इतना अच्छा उनका सर्विसेज है कि पूछो मत। जहां भी देखोगे वह सर्विसेज, सर को अगर यहाँ भी हम कहेंगे कि आप अपने एक्सपीरियंस यहाँ बताइए तो भी वह अच्छी तरह से बता सकेंगे। और मैंने उनसे 3 दिन में उनके साथ रहा हूँ, तो उनकी जो लाइब्रेरी है पब्लिक लाइब्रेरी रियल में कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विसेज देने वाली लाइब्रेरी है। और उन्होंने हमें एक बात और भी सिखाई है, अगर बोलने से बात बनती है तो हमेशा हम डॉक्टर सुधीर नगरकर एंड माई सेल्फ, हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि सबसे जो बात करेंगे वो पोलाइट ढंग से करेंगे। क्योंकि नरेंद्र सर से वो 3 दिन में हमने ये लेसन लिया था कि किस प्रकार से पोलाइटनेस होती है। तो आगे बढ़ेंगे। रेफरेंस सर्विस, कंसेप्ट एंड टाइप्स, रेफरल सर्विसेज, ऑल्टरिंग सर्विसेज, उसमें कैश है, SDI है, इंटर लाइब्रेरी लोन है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी है। उसके बाद मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज एंड टूल्स, मोबाइल ओपैक, बहुत सारे लाइब्रेरियन जो मोबाइल ओपैक दे रहे हैं, मोबाइल डेटाबेसेस, मोबाइल लाइब्रेरी वेबसाइट, कुछ अलर्ट्स भी दे रहे हैं, SMS फैसिलिटी दे रहे हैं, जियो लोकेशन का यूज कर रहे हैं। वेब 2.0, 3.0, लाइब्रेरी 2.0। अब ये तो सर्विसेज में भी आ जाता है, ICT में भी आ जाता है और ऑटोमेशन में भी आ जाता है। कोलैबोरेटिव सर्विसेज भी आपको देने होंगे, जैसे सोशल नेटवर्क से ज्यादा उपयोग करेंगे, एकेडमिक सोशल नेटवर्क भी करेंगे। ये जो कोलैबोरेटिव सर्विसेज में आप अगर ये जो सोशल नेटवर्क जो है उसको आप कभी भी कम मत समझना।
आप अगर न्यू एस्पायरेंट्स भी है या लाइब्रेरी साइंस में नए भी आए हैं, तो भी आपका जो पर्सनल फेसबुक अकाउंट भी चलाते होंगे, तो भी आपको वहां भी कॉशियसली चलाना होगा। क्यों? क्योंकि जिस कंपनी में, जिस कॉलेज में आप रिक्रूट होने वाले हैं, वह आपका सोशल अकाउंट भी चेक करते हैं। वहां अगर आप मेहंदी वाले या कुछ अलग अलग मतलब ऐसे जो रिलेवेंट नहीं है योर प्रोफेशन से, वो भी आप वहां रखेंगे, तो उसके साथ साथ उस इंस्टीट्यूट को आपका जो लॉजिक है या आपका एटीट्यूड है वो पता चलता है। इस वजह से जब तक आपके पैर मतलब जमीन पर स्थिर नहीं हो जाते, तब तक आप इस बातों से भी अलर्ट रहे कि आपको कोई प्रोफेशनल्स देख रहे हैं। और हमेशा याद रखिए कि जो आपको, हाँ, उसका आप बेनिफिट भी ले सकते हैं। जैसे आपने मान लो कि स्वयं का एक कोर्स किया और उसको आप डिस्प्ले भी कर सकते, पब्लिश भी कर सकते, लोगों को बता भी सकते हैं कि हमने ये किया है। क्यों? क्योंकि ये आपका प्रोफेशनल वैल्यू बढ़ाएगा और आपको ये फ्यूचर में हेल्प भी करेगा। तो सोशल नेटवर्क जो है उसको आप कभी अंडर एस्टिमेट ना करना। वेब स्केल डिस्कवरी सर्विसेज, नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, निस्केयर, डेसीडॉक, सेंडॉक, एनवीएस, इनफ्लिपनेट, इसकी भी चर्चा इसमें होने वाली है सर्विसेज में। उसके बाद इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इनिस, एग्रीस, इंस्पेक्ट, मेडलर्स, ये जो डेटाबेसेस है ये भी आपको पता होनी चाहिए। उससे संबंधित ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, 2 घंटे में इतना कवर होने वाला नहीं है, लेकिन मैं ब्रॉड आपको ब्रीफ में बताऊंगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज क्या है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज जो है, फिफ्थ यूनिट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी क्रूशियल। व्हाई इट इज क्रूशियल? बिकॉज इफ यू डोंट नो अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नॉलेज, then I can imagine that you don't know about the classification. I can imagine that you don't know about the cataloging. You don't know about the standardization, etc., etc. Because universe of knowledge, you should know about the nature of knowledge, attributes, modes and formation of subject. ये सब्जेक्ट ऐसे ही नहीं बनाए गए आज की तारीख में। ये तो अच्छी बात है कि ये केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ये मैथ्स है, ये एनवायरमेंटल साइंस है, मराठी है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो है मोड्स ऑफ फॉर्मेशन शुरू से ऐसे डेवलप होते होते यहाँ तक आ गए हैं। तो ये मोड्स ऑफ फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन, बेसिकली पार्टिसिपेंट्स, आई शुड से यू, मैं इस प्रकार से आपको डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, इसका भी एक लॉजिक है। जब तक आप यूनिट में आने वाले जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर नहीं होते हैं, मान लो कि एक 10 सेकंड में भी एक कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी, तो भी आपको बहुत सारे प्रश्नों के आंसर्स ठीक तरह से देने में आपको सहायता हो सकती है। देखो यहाँ पे लिखा है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। अब आप कहेंगे क्लासिफिकेशन तो डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ नॉलेज ऑर्गेनाइज कैसे हो रहा है, ये प्रश्न उठा होगा आपके मन में। लेकिन जब आप क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हो? क्योंकि कम से कम समय में आपके रीडर को आपको किताब देनी है। तो क्लासिफिकेशन ही तो यूज हो रहा है ना। इस वजह से क्लासिफिकेशन के लिए की वजह से आपका नॉलेज ऑर्गेनाइज हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। ये ध्यान में रखिए। तो क्लासिफिकेशन की थीरीज कौन कौन सी है? जैसे कैनन का एक प्रश्न भी हमने उठाया था, और कैनन सब क्लासिफिकेशन 43 कैनन्स को भी देखा था। उसके बाद 3 कैनन्स भी उसमें ऐड कर दिए थे। ये प्रिंसिपल, सिंपल नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, टेक्सोनॉमीज, फॉक्सोनॉमीज, ट्रेंड्स इन क्लासिफिकेशन। अब ये हमेशा ये जो टेक्सोनॉमीज और फॉक्सोनॉमीज में प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज था, टेक्सोनॉमी क्या है, फॉक्सोनॉमी क्या है। लेकिन अब आगे जाकर पता चला कि टेक्सोनॉमी, फॉक्सोनॉमी, these are the terms, these are the concepts, and which is very very useful concept. अब टेक्सोनॉमी में होता क्या है? टेक्सोनॉमी में एक हायरार्की मेंटेन की जाती है, एक हायरार्की मेंटेन की जाती है। सर उदाहरण के जरिए समझाइए। ठीक है, जैसे 500, ये जो नंबर है ये प्योर साइंस का नंबर है। ओके, तो प्योर साइंस में क्या क्या आ जाता है? प्योर साइंस में आ जाता है 510। मैं डीडीसी की बात कर रहा हूँ, डीडीसी, हाँ, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, टेक्सोनॉमी का उपयोग वहां पे हो गया है। तो 500 जो है प्योर साइंस के लिए है, 510 जो है 510 जो है वह मैथमेटिक्स के लिए है,
540 क्या है, केमिस्ट्री है, 530 क्या है, फिजिक्स है। तो ये टेक्सोनॉमी तो है, बाकी कुछ नहीं है। क्लासिफिकेशन में टेक्सोनॉमी का यूज किया है, ये हायरार्की है। जैसे 500 ये हमारा मेन क्लास हुआ, उसके बाद हमने 510, 520, 530, 540, 550 इस प्रकार से बनाए, हायरार्की मेंटेन हो रही है, ये टेक्सोनॉमी तो है। फोक्सोनॉमी क्या है? फोक्सोनॉमी अगेन आप यू शुड रिलेट विद द इंटरनेट कंटेंट। तो फोक्सोनॉमी इज रिलेटेड टू दैट। टैगिंग, हम फेसबुक में किसी को टैग करते हैं, इट इज द एग्जांपल ऑफ फोक्सोनॉमी। ट्रेंड्स इन क्लासिफिकेशन, न्यू ट्रेंड्स भी आपको पता होनी चाहिए। मैपिंग ऑफ सब्जेक्ट्स इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम्स, ये डीडीसी, यूडीसी, सीसी, ये मैंने पहले ही बताया आपको। नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, अब नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन ये 2 बार लिखा है, यहाँ 2 नंबर पे भी क्लासिफिकेशन के आगे लिखा है और 4 नंबर पे भी लिखा है। तो ये दोनों टूल है, नॉलेज ऑर्गेनाइज करने के क्या है, टूल्स है। तो कैटलॉगिंग भी एक टूल है, उसमें आ जाते हैं कैनन्स एंड प्रिंसिपल्स। मैंने बताया था कैनन नथिंग बट इट इज रूल्स, रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। तत्व क्या है और नियम क्या है। सेंट्रलाइज एंड कोऑपरेटिव कैटलॉग, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग कोड्स CCC ACR2 का यूज होता है। जब आप अब ये थोड़ा मतलब ACR2 या CCC, ये जो कार्ड कैटलॉग बनाते थे तब ये नियम सब उसमें आ जाते थे, और इसी वजह से ये सिलेबस में दिया हुआ है। लेकिन ओपेक की वजह से, वेब ओपेक की वजह से न्यू ट्रेंड्स आ गए, तो हमें भी बदलना पड़ेगा। स्टैंडर्ड्स ऑफ बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, बहुत बार ऐसा होता है कि सर मार्क 21 पर बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन ये मार्क 21 होता क्या है सर? मैं बताता हूँ आपको। मार्क 21, अगर कोहा सॉफ्टवेयर में कभी भी आपको मौका मिले तो आप कोहा सॉफ्टवेयर देख लेना, और उसमें जो वो कैटलॉगिंग एंट्री की जाती है उसके लिए जो फॉर्मेट यूज होता है वो है मार्क 21, और उसमें हर एक फील्ड को उन्होंने नंबर दिया हुआ है, और उस नंबर पे भी प्रश्न ये पूछ रहे। मैं आपको एक प्रश्न आगे जाकर दिखाऊंगा। स्टैंडर्ड्स फॉर बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन, ISO 2709। तो ये जो है 2709, Z39.50, ये सारे स्टैंडर्ड्स है किसके? इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एंड कम्युनिकेशन के स्टैंडर्ड्स है। मेटाडेटा स्टैंडर्ड्स, ये सब आपको दिखाई नहीं देंगे आगे, लेकिन बैक एंड पे वो काम करते हैं, ये समझना होगा। डबलिन कोर मार्क 21 अगेन मेटाडेटा स्टैंडर्ड में भी आ गया, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड में भी आ गया। तो मार्क 21 का इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे जान सकते हैं। मेट्स, मोड्स, EAD, इंडेक्सिंग सिस्टम एंड टेक्निक्स। आप कहेंगे ठीक है सर, कैटलॉग समझ में आया, क्लासिफिकेशन समझ में आया, लेकिन इंडेक्सिंग सिस्टम क्या है एंड टेक्निक्स क्या है? अब देखिए, पुराने जमाने पे प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग होता था, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग से था। अब इंडेक्सिंग क्यों होता था? प्री कोऑर्डिनेट, पोस्ट कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग, विच विल बी हेल्पफुल फॉर कैटलॉगिंग। सब्जेक्ट हेडिंग लिस्ट दिए जाते थे, उसमें सारे शब्दों का संग्रहण होता था, और उसमें से शब्द उठा के हम कार्ड कैटलॉग में लिखते थे। इस प्रकार से एक दूसरे पे निर्भर करती है ये कंसेप्ट। एब्स्ट्रैक्टिंग, टाइप्स एंड गाइडलाइंस, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल आज की डेट में बहुत ही मायने रखती है। आपने अगर BLIS और MLIS ठीक से पढ़ा होगा तो रंगनाथन ने एक पैटर्न दिया हुआ है, अपूपा पैटर्न। मतलब जो क्लोज रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वही यूजर उठाता है, वह ऐसा उनका मानना था, और वह सही भी है। उसके बाद एक प्रश्न मैंने यहाँ पे लिया है, जैसे मेट्स का फुल फॉर्म क्या है? मेटाडेटा एनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्कीमा। तो ये एक स्टैंडर्ड है। जैसे यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो मेटाडेटा स्टैंडर्ड है, यह स्टैंडर्ड यूज किया जाता है। मेट्स मेटाडेटा एनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्कीमा है। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द आल्टो XML स्कीमा विच वाज यूज्ड विद द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस? तो मेट्स का यूज किसने किया है? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, इन्होंने किया है। और यहां पूछा क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस? आल्टो XML स्कीमा, आल्टो XML स्कीमा का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो 4 पर्पस उन्होंने दिए है, उसमें से
करेक्ट पर्पज आपको यहाँ पे लिखना था। तो पहला पर्पज उन्होंने दिया है टू इनकोड ऑडियो मेटाडेटा फॉर डिजिटल लाइब्रेरीज। दूसरा है टू मैनेज वीडियो कंटेंट इन मल्टीमीडिया आर्काइव्स। तीसरा है टू स्टैंडर्डाइज बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स इन लाइब्रेरी कैटलॉग। और चौथा है टू डिस्क्राइब द लेआउट एंड कंटेंट ऑफ फिजिकल टेक्स्ट रिसोर्सेज सच एज पेजेस ऑफ अ बुक और न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे ये प्राइमरी पर्पज ये है टू डिस्क्राइब द लेआउट एंड कंटेंट ऑफ फिजिकल टेक्स्ट रिसोर्सेज सच एज पेजेस ऑफ बुक एंड और न्यूज़पेपर। तो ये जो है टेक्निकल क्वेश्चन है, बस आपको ये याद रखना है कि अगर जब भी ये प्राइमरी पर्पज का प्रश्न आएगा मेट्स के संबंधित, तो डिस्क्राइब लेआउट एंड कंटेंट फिजिकल टेक्स्ट रिसोर्सेज सच एज पेजेस ऑफ अ बुक और न्यूज़पेपर, ये याद रखना होगा। अब टेक्सोनॉमी, जैसे टेक्सोनॉमी फोक्सोनॉमी की बात हो रही थी जब मैं यूनिट का डिस्कशन कर रहा था, तो टेक्सोनॉमी से संबंधित यह प्रश्न जून 2025 में पूछा गया है। प्रश्न क्या है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट लाइब्रेरीज व्हाट डज द टर्म टेक्सोनॉमी रेफर टू? अब संदर्भ कौन सा है? कॉर्पोरेट लाइब्रेरी का है, और उसमें टेक्सोनॉमी का अर्थ क्या है यह पूछा गया है। सीधे उत्तर पे आ जाता हूं मैं। टेक्सोनॉमी रेफर टू a system for organizing and categorizing information and content। फिर से दोहराता हूं, a system, टेक्सोनॉमी ऐसी सिस्टम है फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट। मतलब इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए और कैटेगराइज करने के लिए जिस सिस्टम का यूज होता है उसे टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो उन्होंने डेफिनेशन ही दी है यहाँ पे। लेकिन कॉर्पोरेट लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंटेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन कैटेगराइजेशन होगा, माना कि वो ऑनलाइन मोड में ज्यादा होगा, क्योंकि लाइब्रेरी कौन सी है? कॉर्पोरेट लाइब्रेरी। दूसरा तो नहीं होगा द क्लासिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन देयर रोल्स। अरे क्या कुछ बनता ही नहीं है यहाँ पे रिलेशन। उसके बाद द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंस का और कंटेंट का कुछ रिलेशन ही नहीं है, तो वो भी नहीं बनेगा। अ मेथड फॉर कैटलॉगिंग कैलकुलेटिंग टैक्सेस। तो टैक्सेस ये जो कुछ नहीं बनेगा। तो इस प्रकार भी आपको लॉजिक लगाना है कि ये टेक्सोनॉमी जो है वो हमेशा एक हायरार्की होती है। और हायरार्की क्यों होती है? उसको कैटेगराइज ऑर्गेनाइज करने की, इंफॉर्मेशन कंटेंट ऑर्गेनाइज कैटेगराइज करके एक सिस्टम जो बनाई जाती है। क्यों करना है ऑर्गेनाइज और क्यों करना है कैटेगराइज? जब आप ऑर्गेनाइज करेंगे, जब आप कैटेगराइज करेंगे, तो ही आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, स्पेसिफिक डिमांड यूजर को देते हैं। कॉर्पोरेट लाइब्रेरीज में हमारे लाइब्रेरी जैसा काम नहीं चलता है। कॉर्पोरेट लाइब्रेरीज में काम किस प्रकार चलता है? दे आर एक्सेप्टिंग, लाइब्रेरियंस आर एक्सेप्टिंग द क्वेरीज कहते हैं उसे। दे आर एक्सेप्टिंग द क्वेरीज कहां से आती है? मेल पे आती है। मेल पे क्वेरीज आती है। उनको क्या चाहिए? ये बुक चाहिए ई फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो आपको ढूंढना होता है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कौन सा बुक है। क्यों? कब ढूंढेंगे? कब अच्छी तरह से ढूंढ सकेंगे? जब आपने वो कंटेंट को कैटेगराइज किया है, जब आपने उस कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया है, और तभी आपको मेल पे उनको वह बुक भेजनी होती है या उसकी लिंक भेजनी होती है। और इस प्रकार से काम चल रहा है। वो यूजर कॉर्पोरेट लाइब्रेरी में फिजिकली आपके पास नहीं आता। इस वजह से यह याद रखना है, टेक्सोनॉमी रेफर टू अ सिस्टम फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटेगराइजिंग इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट इन लाइब्रेरी साइंस। अभी इसका टेक्सोनॉमी का भी अर्थ देख लेते हैं। इन लाइब्रेरी साइंस टेक्सोनॉमी इज हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। मैंने ये आपको पहले भी बताया। इट इज ए क्लासिफिकेशन, इट इज ए हायरार्की दैट ऑर्गेनाइजेस। क्या क्या ऑर्गेनाइज कर रहा है? इंफॉर्मेशन यूजिंग स्ट्रक्चर्ड वोकेबलरी to facilitate content organization, indexing and retrieval. It involves arranging terms in a structure of categories and subcategories with examples ranging from traditional systems like the Dewey Decimal System to more modern digital taxonomy used for tagging content. जैसे Facebook का जो tagging होता है, it is also the part of taxonomy. But in internet language, we can say taxonomy. A key function of library taxonomy is to help
Users find and browse information by providing consistent labels and consistent structure of navigation and search. तो टेक्सोनॉमी की वजह से आपको आपका कंटेंट जो चाहिए पर्टिकुलरली वही कंटेंट तक आप पहुंच सकते हैं, आपको मिल सकता है. Which of the following elements are mandatory in a Mark 21 bibliographic record? अब जैसे मैंने कहा कि आप अगर कोहा में कैटलॉगिंग करेंगे, किताब की एंट्री करेंगे, तब आपको वहां बहुत सारे फील्ड मिलेंगे. जैसे 008 पे आपको सेंट्रल फील्ड मिलेगी, लीडर फील्ड मिलेगी. तो लीडर और सेंट्रल फील्ड जो है वो मैंडेटरी फील्ड है, उसको आप इग्नोर करके नहीं जा सकते आगे. आप अगर उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपकी फील्ड ही नहीं बनेगी, कैटलॉग ही नहीं बनेगा. तो मैंडेटरी फील्ड है. वैसे ही आईएसबीएन का फील्ड मैंडेटरी नहीं है, पब्लिशर स्टेटमेंट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन टाइटल स्टेटमेंट जो है वो मैंडेटरी है. उसके साथ ऑथर स्टेटमेंट जो है वह भी ऑथर स्टेटमेंट हालांकि उन्होंने दिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन ऑथर स्टेटमेंट भी है, मैंडेटरी है. इस प्रकार से कौन से मैंडेटरी फील्ड है, कौन से मैंडेटरी नहीं है, यह भी आपको याद रखना होगा. मैच द लिस्ट 1 and 2 इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम. तो यहाँ पे सिमेंटिक सर्च इंजिन, बुलियन ऑपरेटर्स, ये भी प्रश्न 25 जून 2025 में पूछा गया है. मैंने लिखा नहीं है वहां पे, लेकिन मैं बताता हूं आपको. सिमेंटिक सर्च इंजिन, बुलियन ऑपरेटर्स, नॉलेज रिट्रीवल सिस्टम्स एंड अल्जेब्रिक आईआर मॉडल. तो अल्जेब्रिक आईआर मॉडल जो है वो लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग है, उसका एग्जाम्पल है. नॉलेज रिट्रीवल सिस्टम जो है वो कॉग्निटिव मॉडल है. बुलियन ऑपरेटर्स क्या है, डिजिटल लॉजिक है. और सिमेंटिक सर्च वोल्फ्रैम और अल्फा, ये इसकी जोड़ी लगती है. तो ये याद रखिए, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है. यूनिट नंबर 6 मैनेजमेंट. जब 2020 और 2021 में जब मैंने और सुधीर सर ने सिखाया था, तो मैनेजमेंट हालांकि मेरे पास ही था, तो मैनेजमेंट के बहुत सारे टर्म्स होते हैं. जैसे वहाँ मैनेजमेंट ले लूथर गुलिक है, हेनरी फ्योल है, बहुत सारे हैं. तो उसमें से एक प्रश्न पहले उठा लेते हैं क्या, ताकि हमें ये जो यूनिट है अच्छी तरह से समझ में आ सके. प्रश्न पहले लेंगे. प्रश्न क्या है देखो, सीक्वेंस द एक्शंस फॉर इंप्लीमेंटिंग अ वर्चुअल रेफरेंस सर्विस इन अ स्पेशल लाइब्रेरी. तो आपको अगर स्पेशल लाइब्रेरी में वर्चुअल रेफरेंस सर्विस देनी है, तो आपको कौन कौन से एक्शन सीक्वेंस वाइज लेने होंगे, कौन कौन से एक्शंस सीक्वेंस वाइज लेने होंगे. बहुत अच्छा प्रश्न है ये. तो ये हम मैनेजमेंट स्किल है आपका, कि इस प्रकार से आप शुरू से अंत तक जाएंगे. तो पहले आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई यूजर नीड्स. सबसे पहले क्या है, यूजर को क्या चाहिए, वही तो याद रखना है. तो पहले तो सी आएगा. उसके बाद ई पे देखिए, सिलेक्ट वर्चुअल रेफरेंस सॉफ्टवेयर. वर्चुअल रेफरेंस सॉफ्टवेयर का चयन आपको यहां पे करना होगा. ट्रेन द स्टाफ. उसके बाद लॉन्च सर्विस पोर्टल, और उसके बाद मॉनिटर एंड इम्प्रूव सर्विसेज. आप कोई भी सर्विस जब देते हैं, आप अगर रेड बस से भी कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो उनका फीडबैक आ जाता है. हम भी, आप अमोल सर भी आपको ये सेशन हो जाने के बाद आपको एक फीडबैक लिंक देंगे. उस लिंक को फिलअप करके आप जब सबमिट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा. उसमें ये पूछा जाएगा कि आज का लेक्चर कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, ये वो. तो ये जो है हमेशा जो है लास्ट में वही आता है, इम्प्रूव सर्विसेज के लिए आपको मॉनिटर करना पड़ता है. तो इस प्रकार का सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस आप अगर वहां देंगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा. इसमें मैनेजमेंट सब यूनिट, 6th यूनिट जो है मैनेजमेंट, उसके सब यूनिट्स क्या क्या है. तो बहुत अच्छी तरह से जो रेड कलर में लिखा है वही पढ़िए. पहले तो प्रिंसिपल, फंक्शंस एंड स्कूल्स आपको देखने होंगे. उसमें भी क्लासिकल स्कूल्स कौन सा है, साइंटिफिक स्कूल कौन सा है, मॉडर्न स्कूल कौन सा है, ये भी आपको देखना होगा यहाँ पे.
उसके बाद लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फिनेंशियल मैनेजमेंट इन लाइब्रेरीज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, उसमें SWOT है, पेस्ट है, PERT है, CPM है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, उसके उद्गाता कौन है, उसमें जो साइकिल दिया है वो कौन सा साइकिल उन्होंने यूज किया है, लाइब्रेरी बिल्डिंग कैसे होनी चाहिए, ये सब, MIS का यूज, नॉलेज मैनेजमेंट, मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे ये सारे ओल्ड कंसेप्ट है, जैसे प्रिंसिपल से लेकर नॉलेज मैनेजमेंट तक। लेकिन ये जो कंसेप्ट लास्ट में दिया है, मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, पुराने जमाने में जो यूजर थे वह ऑटोमेटिकली उनके पांव लाइब्रेरी तक आ जाते थे, लेकिन आज की तारीख में ऐसा हो नहीं रहा। आज क्या हो रहा है, ऑल पीपल आर सेइंग users are not coming into the library. Why they are not coming? Because information in their hands. They are using mobile, they are using Google. Right now they are using Chat GPT and another tools of AI. So आपको क्या करना है, हाँ उनको उठा के घर से उठा के यहाँ पे लाना ये मुमकिन नहीं रहा, तो अभी आपको मार्केटिंग का जरिया पकड़ के आपको उनके तक पहुंचना है। पुराने जमाने में ये कहा जाता था कि क्यों मार्केटिंग कर रहा है, क्यों मार्केटिंग कर रहा है, बहुत शो ऑफ करता है, शो ऑफ करता है। लेकिन अब इस जमाने में वही तो चल रहा है। अगर आप अपने लाइब्रेरी के सर्विस उन तक नहीं पहुंचाएंगे तो आपका लाइब्रेरी का एग्जिस्ट नहीं रहेगा। इस वजह से ये हमेशा याद रखिए कि इसमें बुराई कुछ नहीं है। आप अगर लाइब्रेरी के प्रोडक्ट उनके पास लेके जा रहे हैं तो अच्छी बात है, और लेके जाना भी चाहिए। उसके लिए प्लान क्या करना है, उसके लिए रिसर्च क्या करना है, उसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। ये जो स्ट्रैटेजीज है, सेगमेंटेशन, प्राइसिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब आ जाते हैं मार्केटिंग ऑफ लाइब्रेरी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में। मैं यहाँ कोशिश ये कर रहा हूँ कि कम से कम 2 घंटे में आपको ओवरव्यू पेपर 2 का दूं, ताकि मुझे पता है कि इन जनवरी 2026 you are going to appear for the exam of UGC NET, and booster you can get here. उसके बाद टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जैसे अभी मैं प्रश्न पूछूंगा आपसे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की कौन सी जनरेशन अभी चल रही है, तो yesterday one fellow asked that this question, and my colleague and my friends, they were telling them that 5G like that. It is the generation of internet, but they have asked the question of computer generation, and that fellow only given the answer, 7th generation is going on of computer generation, 7th generation is going on. So that is the answer. आप कहेंगे कितने जनरेशंस याद रखने हैं सर, कंप्यूटर के जनरेशंस, इंटरनेट के जनरेशंस, अब एआई के जनरेशन। एआई के भी 3 कैटेगरीज आ गए हैं, नैरो एआई, ब्रॉड एआई, जनरल एआई। सर क्या क्या याद रखूं? लेकिन जब तक आप पास नहीं होते, क्वालिफाई नहीं होते, तब तक आपको याद करना ही होगा। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजरल, हाई लेवल्स, scripting, web languages, telecommunication, transmission channels, modes, media, ISDN, PSDN, multiplexing, modulation, standardization protocols, wireless communication, वाईफाई, लाईफाई, ये सब चल रहा है अभी। कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें टोपोलॉजी है, लैन मैन वैन है, इंटरनेट वेब ब्राउजर्स है, इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड, HTTP, ये सब स्टैंडर्ड है। देखिए अब वहां जो कैटलॉगिंग के स्टैंडर्ड अलग थे, अब यहाँ इंटरनेट प्रोटोकॉल्स भी अलग है, स्टैंडर्ड भी अलग है, SMTP, FTP, ये सब मेल में यूज होता है उसका। हाइपरटेक्स्ट, हाइपरमीडिया, डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। आप कहेंगे सर ये तो यूनिट नंबर 10 है, 10 यूनिट है यहाँ पेपर 2 में, 10 यूनिट है पेपर 1 में, क्या क्या सीखो। यही तो कंडीशन है ना, आप वर्सेटाइल आपको होना ही चाहिए। जब तक आप वर्सेटाइल नहीं होते तब तक आप नेट सेट क्लियर नहीं होंगे। तो आपको ऐसा नहीं है, ये नॉलेज जो है ना, ये पूरा मतलब अखंड है। उसको हमने अपनी अपनी फैसिलिटी के लिए, या क्या बोलते हैं उसे, सहूलियत के लिए उसको हमने कट किया है। ये फिजिक्स है, ये केमिस्ट्री है, ये फिलोसॉफी है, सो एंड सो।
लेकिन ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है मैं मराठी का शिक्षक हूँ तो इंग्लिश नहीं बोल सकता, बोल सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको एफर्ट्स लेना होगा उसके लिए। डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी। तो डेटा सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी ये जो है बहुत पेचीदा इशू है, जबकि आज के पेपर में ही आया है कि वो डिजिटल ट्रैप हुआ और 55 लाख उसके चले गए। तो हर दिन ये पेपर में आ रहा है, और ये इंडिया में ज्यादा हो रहा है। क्यों इंडिया में क्यों ज्यादा हो रहा है? क्योंकि इंडिया में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम, नेटवर्क सिक्योरिटी जितनी चाहिए उतनी नहीं है। तो किसको क्या काम करना चाहिए? हम सबको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि देश कुछ नहीं कर रहा। देश मतलब कौन है? वी पीपल ऑफ इंडिया इज द कंट्री। ओके, तो हम सबको थोड़े थोड़े एफर्ट्स लेके ही काम करना होगा। उसके बाद आगे देखेंगे ऑटोमेशन, ये जो क्लोज रिलेटेड है। देखो, जब यहाँ बात होती है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी इज एसोसिएटेड विद, क्लोज एसोसिएटेड विद ऑटोमेशन। और ऑटोमेशन में लाइब्रेरी ऑटोमेशन, बारकोड डिजिटाइजेशन, डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल प्रिजर्वेशन, डिजिटल लाइब्रेरी इनिशिएटिव, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी वगैरह वगैरह। इसमें ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन लास्ट यूनिट जो ओंटोलॉजी, ये ओंटोलॉजी जो है ये जो है बहुत बार प्रश्न पूछा जा गया है। उसमें जो टूल्स है, और ये टूल्स जो है आरडीएफ, आरडीएफएस एंड पोटीजी, सिमेंटिक वेब, लिंक्ड डेटा, बिग डेटा, डेटा माइनिंग, डेटा हार्वेस्टिंग, लाइब्रेरी लिव ऑटोमेशन। तो ये सब ऑन्टोलॉजी जो है उसके सारे टूल्स है। तो आरडीएफ रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, इस पर आधारित भी एक प्रश्न पूछा गया है, वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक प्रश्न उससे संबंधित, टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन से संबंधित पूछा गया है, और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, जो कि कंसेप्ट क्लियर करने वाला प्रश्न है। प्रश्न क्या है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेटफॉर्म एज सर्विस। अब पास का तो फुल फॉर्म यहाँ पे उन्होंने दिया है प्लेटफॉर्म एज सर्विस। तो प्लेटफॉर्म एज सर्विस का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, और ऑप्शन में अमेजॉन वेब सर्विस, एडब्ल्यूएस, गूगल ऐप इंजिन, GoGrid एंड 3Tera, ये ऑप्शन दिए है। लेकिन प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का एक अच्छा उदाहरण कौन सा है? गूगल ऐप इंजिन। ओके, तो जैसे प्लेटफॉर्म एज सर्विस पास है, वैसे IaaS भी है और SaaS भी है। ये तीन प्रकार आपको पता होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जब भी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का प्रश्न आएगा, या इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस का प्रश्न आएगा, तो AWS को याद रखिए, EC2, माइक्रोसॉफ्ट अजूर, ये भी याद रखिए। लेकिन AWS ये जो है वो प्लेटफॉर्म एज सर्विस भी है, जो कि नेट के आंसर में उन्होंने दो आंसर्स बराबर दिए हैं। अमेजॉन वेब सर्विस AWS भी है, गूगल ऐप इंजिन भी है। तो यहाँ पे दोनों को ऑप्शन, लेकिन अगर एक ही ऑप्शन पे टिक क्लिक करना है तो आप गूगल ऐप इंजिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्लेटफॉर्म एज सर्विस का एग्जांपल एक गूगल ऐप इंजिन है, उसके बाद हीरोकू भी है। उसके बाद सॉफ्टवेयर एज सर्विस, इसमें ये हमेशा याद रखिए, गूगल वर्कस्पेस यानी जीमेल का जो वर्कस्पेस है, वह एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर एज सर्विस का है। सेल्स फोर्स भी है और गूगल वर्कस्पेस भी है। रिसर्च मेथोडोलॉजी, अब रिसर्च मेथोडोलॉजी वैसे मैं यहाँ ज़्यादा एम्फोसिस नहीं करूँगा, क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी वैसे भी इजी टॉपिक मुझे लगता है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी में जो कंसेप्ट आते हैं, जो फर्स्ट पेपर में भी रिलेट करते हैं, रिसर्च के कंसेप्ट, पर्पस, फंक्शन, ये सब आपने BLIS MLIS में सीखा होगा। रिसर्च मेथड में 3 मेथड है, जैसे हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव और एक्सपेरिमेंटल एंड डेल्फी मेथड। लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशनल्स के लिए डेल्फी मेथड का बहुत अच्छा यूज़ होना चाहिए, उस पर ज़्यादा स्टडी होनी चाहिए। क्योंकि हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो अन्य सब्जेक्ट के छात्र भी अच्छी तरह से पढ़ते हैं, लेकिन डेल्फी मेथड जो है स्पेशली लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशनल शुड रिमेंबर दिस। रिसर्च डिज़ाइन, आप जब भी कोई रिसर्च डिज़ाइन सिलेक्ट करते हो, तो उसमें आप बहुत सारी बातों का ध्यान रखते हो। कौन कौन सी बातें? जैसे आपका ऑब्जेक्टिव कौन सा है, आपके हाइपोथेसिस कौन से हैं, आपके टाइप्स कौन से हैं, आपका सैम्पलिंग क्या है, आपका पॉपुलेशन क्या है। इस प्रकार से आप सबका विचार करके आपका रिसर्च का डिज़ाइन करते हो। रिसर्च डिज़ाइन जब आपका फाइनलाइज हो जाता है, तो
मान लो कि आपका टेक्निकल बहुत सारा पार्ट वहाँ पे कवर हो जाता है। मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, जैसे मैंने रिव्यू पहले ही आपको बताया था कि सर्वे करते हैं बहुत सारे संशोधक, और वह संशोधन करते समय क्वेश्चनर का यूज करते हैं और प्राइमरी डेटा कलेक्शन करते हैं। इंटरव्यू से भी प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है, ऑब्जर्वेशन से भी हो सकता है। लाइब्रेरी रिकॉर्ड, स्केल्स, चेकलिस्ट, दीज आर द डेटा कलेक्शन टूल्स which can be used in the research, data analysis and interpretation। अब डेटा कलेक्शन हो जाने के बाद जो प्रोसेस होती है उसको डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन कहते हैं। जब आपको डेटा प्रेजेंट करना होता है तो आपको स्टैटिस्टिकल मेथड और टेक्निक्स का भी यूज़ किया करना पड़ता है। उसके लिए आप SPSS के SPSS जैसे स्टैटिस्टिकल पैकेजेस यूज़ कर सकते हैं, जो कि सोशल साइंस के लिए बहुत ही अच्छे हैं। आर स्टैटिस्टिक्स का भी यूज़ होता है जैसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। बिब एक्सेल का भी यूज़ कर सकते हैं, और इस के जरिए आप स्टैटिस्टिकल पैकेज का यूज़ करके आप आपका जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है उसको कवर कर सकते हैं। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एंड साइटेशन टूल्स। रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग एंड साइटेशन टूल्स में जैसे साइटेशन टूल में आपको झोटेरो का यूज़ करना होगा, उसके बाद एंड नोट का भी आप यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल मैनुअल का भी आपको देखना होगा कि APA का स्टाइल मैनुअल है या अदर स्टाइल मैनुअल का उन्होंने जिक्र किया है। जिस प्रकार का रूल्स एंड रेगुलेशंस उन्होंने दिए हुए थे रिसर्च के लिए, उसी प्रकार से आपको आपका थीसिस बनाना होता है। मेट्रिक स्टडीज इन लिस्ट, इसमें बिब्लियोमेट्रिक, साइंटोमेट्रिक, वेबोमेट्रिक और आल्टोमेट्रिक्स का भी यूज होता है। बिब्लियोमेट्रिक्स में बहुत सारे रिसर्चर आज की तारीख में स्कोपस में या वेब ऑफ साइंस में अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश कर रहे हैं। तो मैट्रिक्स क्या है यह भी आपको पता होना चाहिए। इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर I10 इंडेक्स क्या है, G इंडेक्स, H इंडेक्स क्या है, ये जो है ये इंडेक्स बहुत ही कमाल की चीज़ है। जैसे गूगल स्कॉलर में आप जाएंगे तो गूगल स्कॉलर में आपको आपका H इंडेक्स दिखाई देगा जो कि ऑथर से रिलेटेड है, और H इंडेक्स में आपको आपका लेवल पता चलेगा कि मेरा H इंडेक्स अच्छा है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप अच्छा बना सकते हैं। और ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिसर्च, तो एक प्रश्न देखेंगे। सारे प्रश्न मैंने मैंने ऐसे रिलेटेड लिए हुए हैं, और बाद में हम कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे और 1 बजे हमारा सेशन एंड हो जाएगा। नेम द सिमिलरिटी मेजर in which similarity of a document is adjusted such that the similarity of document to itself is 1। अब ये जो है क्वेश्चन जो लिया गया है यह स्टैटिस्टिकल क्वेश्चन है, जो कि स्टैटिस्टिकल जो डेटा एनालिसिस में जो टेस्ट मेजर्स होते हैं वो मेजर किस प्रकार से होते हैं, तो ये एम्फसिस करता है स्टैटिस्टिकल मेजर को। नेम द सिमिलरिटी मेजर इन विच सिमिलरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट इज एडजस्टेड, मतलब जो सिमिलरिटी डॉक्यूमेंट जो एडजस्ट किया जाता है, यह डॉक्यूमेंट जो है इटसेल्फ इज 1, तो उसको क्या कहते हैं। तो कोजिन मेजर, डिस्टेंस मेजर और स्वेट्स मेजर और नॉर्मलाइज सिमिलरिटी मेजर, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ मेजर्स। ओके, जब सिमिलरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज 1 इस प्रकार का वाक्य आएगा तो आप नॉर्मलाइज्ड सिमिलरिटी मेजर वहां पे आप लिखेंगे। हाउ मेनी कोर क्वेश्चंस आर प्रोवाइडेड इन लिपक्वल सर्वे, आप कहेंगे ये क्या है। आप अगर वेबसाइट को विजिट करेंगे लिपक्वल सर्वे की, तो आपको ये पता चलेगा कि वहां पे रेडीमेड टूल्स उन्होंने क्वेश्चनर के दिए हुए हैं, और यह प्रश्न उसी से संबंधित है। लिपक्वल सर्वे प्रोवाइडेड हाउ मेनी कोर क्वेश्चंस, तो उन्होंने 22 क्वेश्चंस उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, दिए हैं। इस वजह से यहाँ आंसर आसानी से आप दे सकते हैं 22। लेकिन मैं आई विल इंसिस्ट यू, और आई वुड इंसिस्ट यू दैट just go to LibCal survey website and find what they have given the questionnaires and how they have given the core questions. Unit number 10, types of libraries and information system। यह जो यूनिट है इसमें कुछ टाइप्स दिए हैं, और बहुत ही मतलब बिलीव एमलीव में हम ये सीखे हुए हैं
एकेडमिक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, हेल्थ साइंस लाइब्रेरी, कॉरपोरेट लाइब्रेरी। जैसे कि कॉरपोरेट लाइब्रेरी की चर्चा मैंने थोड़ी देर पहले की है। एग्रीकल्चरल लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजिकल लाइब्रेरी, आर्काइव, म्यूजियम, ओरिएंटल लाइब्रेरीज, कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस सिस्टम, इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड सिस्टम फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन एंड वुमेन। अब देखिए, जैसे कि ये सारे यूनिट यहाँ पे मैंने उसका जिस्ट बता दिया है, लेकिन जब आपको नेट को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें कुछ टाइप्स होते हैं, जो कि यह जब आप सीआरसी करेंगे यानी कंफर्म राउंड, रिव्यू राउंड और कॉम्प्लेक्स राउंड, तब भी आपका चयन ऐसे ही होना चाहिए कि सिंपल क्वेश्चंस को आपको पहले अटेम्प्ट करना चाहिए जो कि कंफर्म राउंड से संबंधित होंगे। उसके बाद मैच द फॉलोइंग, ये भी आसान प्रश्न होते हैं। हालांकि मेरा मानना यह है कि मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आपको बहुत सारे मार्क्स दे के जाते हैं। अरेंज द सीक्वेंस, असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसमें थोड़ा ज़्यादा विचार करना होता है और उस तरीके से आपको वहाँ पे आंसर देना है। उसके बाद असर्शन एंड रीजन, ये जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा सोचना पड़ता है, एक प्रश्न 3-4 बार पढ़ना पड़ता है ताकि आप अच्छी तरह से प्रॉपर आंसर या करेक्ट आंसर की तरफ चले। आंसर एंड assertion and reason, the questions are quite difficult, but it is not difficult as your uh, meditation or if your study is very in a high level, in depth level, then assertion and reason questions, they are simple for you. Then paragraph or passage, I think regarding this question, type of question, I should say that you should, as much as possible, read the paragraphs where you comfortable with the language. If you are comfortable with Hindi, then more practice of paragraphs of Hindi. If you are comfortable with English, just go through. I should say that 20 to 25 passages or paragraphs you should follow, and you should try to give the answers at your own. After that, you should see the answers, what correct answer is. And if the answer, your answer is wrong, then you should find the where I wrong and why I did wrong answer. So by that way, you should increase your power of paragraph and passage questions. Then you will get more marks in that area. So now I'm just a rapid round. It is going on here, and these questions are not related with the June 2025, but these all questions I have put it here. Those are asked in previous years UGC NET examination. Okay, so important questions I'm discussing here. And remember one thing, all the participants, you will get the PDF of this presentation. So don't write anything about your notes and all right now, because you just concentrate on each questions and my discussion. Okay, then only you will get good information from me. Okay, which first version of e-Granthalaya was made available on cloud platform? अभी इससे पहले जो IAS, पास और सास देखा था, वह क्या थे? टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग थे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सॉफ्टवेयर। ये जो देखा था प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉरी सॉफ्टवेयर नहीं सर्विस। तो ये जो IAS, पास और सास जो है, दीज आर क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप्स। अब यहाँ प्रश्न ये पूछा गया है, ई ग्रंथालय वॉज मेड अवेलेबल ऑन क्लाउड, ई ग्रंथालय क्लाउड पे कब अवेलेबल कर दिया गया है, कौन से एडिशन में? तो ई ग्रंथालय 4.0 में वह क्लाउड पे आ गया है। ओके, उससे पहले 3 जो था, 3.0 तक था, वह सर्वर क्लाइंट बेसिस था, लेकिन यहां पे क्लाउड बेस्ड हो गया 4.0 में। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहां पे फिजिकल लेयर है, नेटवर्क लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, एप्लीकेशन लेयर है। तो यह OSI मॉडल है। तो उसके जो स्टेप्स है, 7 स्टेप्स, 7 लेयर है, उसमें से 4 लेयर उन्होंने दिए हैं।
लेकिन उसको आप फंक्शन क्या है यह उन्होंने पूछा है। ये जो है ना, यहाँ पे डेप्थ नॉलेज की जरूरत है। अब हमें लेयर तो पता होता है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 ये लेयर तो पता है, लेकिन फिजिकल लेयर का काम क्या है? फिजिकल लेयर का काम है प्राइमरीली कंसर्न विथ डेटा ट्रांसमिशन स्पीड। नेटवर्क लेयर का काम है कंसर्न विथ ऑर्डरली एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन कंप्यूटर्स कनेक्टेड ऑनलाइन। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है ensures data is received reliably by the receiver। और एप्लीकेशन लेयर का काम है सपोर्ट्स मेल ट्रांसफर, फाइल ट्रांसफर, रिमोट लॉगिन एटसेट्रा। तो ये जो है इन डेप्थ स्टडी आपकी होनी चाहिए, यही इंडिकेट करता है यहाँ पे। ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग इन एन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। अब यहाँ सबसे पहले कौन आया है? द रुड़की कॉलेज, न्यू आईआईटी रुड़की, उसका एस्टेब्लिशमेंट पहले हुआ है। तो अब ऐसा नहीं है कि आईआईटी रुड़की का स्टडी करते समय उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी आपको लिखना होगा, नोट्स बनाने होंगे। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये भी आपको पता होनी चाहिए। कोन्नेमरा पब्लिक लाइब्रेरी, वह भी आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का एस्टेब्लिशमेंट है, और लास्ट में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसे हम भेल भी कहते हैं। खाने की जो भेल होती है ना, उसको याद रखिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। तो ये जो असेंडिंग ऑर्डर में उसको उन्होंने रख दिया है। ये प्रश्न देखिए, असर्शन रीजन वाला पहला प्रश्न है आज के प्रेजेंटेशन। ये बहुत अच्छा है कि जब असर्शन रीजन में प्रश्न आते हैं तो हमें थोड़ा और अलर्ट होना पड़ता है। अब असर्शन क्या है? पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया emphasize on library access। पब्लिक लाइब्रेरीज इन इंडिया emphasize on library access। आपको यह भी प्रश्न पूछा जाएगा कि तमिलनाडु इज द फर्स्ट स्टेट विच कलेक्ट द लाइब्रेरी access। तो इस प्रकार का असर्शन होगा तो आप ए इज ट्रू कहेंगे। उनका एम्फोसिस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट है वहां लाइब्रेरी access अभी भी नहीं लिया जाता, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टेट है वहां लाइब्रेरी सेस लिया जाता है। लाइब्रेरी सेस लेंगे तो क्या होगा? तो ही लाइब्रेरीज डेवलप होगी, उसको फंड मिलेगा। इस वजह से लाइब्रेरी सेस लेना जरूरी है। रीजन, द स्टेट्स नॉट हैविंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट डू नॉट हैव अ प्रोविजन ऑफ लाइब्रेरी सेस। द स्टेट्स नॉट हैविंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। और यहां पे देखिए बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ही नहीं है। नॉट हैविंग पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सब जगह पे नहीं है। पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कई जगह पे है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है कि द स्टेट्स, बहुत राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट प्रोविजन नहीं है लाइब्रेरी सेस की। तो लाइब्रेरी सेस की प्रोविजन नहीं है लाइब्रेरी एक्ट में, यह भी सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब लाइब्रेरी एक्ट तो है, लेकिन लाइब्रेरी सेस का प्रोविजन। Read the given passage and answer the questions that follows। I will not read this paragraph because we are not having much time, but I will give the tricks how to solve this question। Now, oldest discovery tool is catalog। When you read the question and just you will find your you will see the options: accession, register, index, catalog, Amazon, and if in the paragraph they have given the answer is catalog, then if your logic is to the accession register, don't go with your logic. Here in paragraph what they have given, that should be followed, and that's what the catalog is the answer। And the first US patent for an active RFID tag with rewritable memory was awarded to। अब ये पहला यूएस पेटेंट किसको मिला है, किस वजह से? एक्टिव आरएफआईडी टैग विद रिराइटेबल मेमोरी जिन्होंने बनाया, उसके लिए फर्स्ट यूएस पेटेंट किसको मिला? ये जो है 1973 क्लासिकल
RFID technology is mainly invented for use in the military services. और मारियो कार्डोलो इनको अवार्ड हुआ था, मारियो कार्डोलो। लेकिन नोट्स बनाने के समय आपको यह भी याद रखना है, हु इज डेविड ब्रॉक, हु इज केविन एस्टन, हु इज संजय शर्मा। डेविड ब्रॉक इज अमेरिकन लिबरल पॉलिटिकल कंसल्टेंट, केविन एस्टन who created a global standard system for RFID, and Sanjay Sharma worked well in commercial RFID industry। अब RFID से संबंधित प्रश्न है, और डेविड ब्रॉक जो है वो तो पॉलिटिकल कंसल्टेंट है, उसका तो सवाल ही नहीं उठता, तो एक नंबर का ऑप्शन होगा ही नहीं। अब तीन जो ऐसे है वो RFID से संबंधित तो है, लेकिन उसमें से एक को यूएस पेटेंट अवार्ड मिला है। ओके, यूएस पेटेंट मिला है, सॉरी, अवॉर्डेड टू, मतलब उनको यूएस पेटेंट उनके नाम पर है, मारियो कार्डोलो के नाम पर है। ठीक है, तो यूएस पेटेंट मारियो कार्डोलो के नाम पे है, तो वह डायरेक्ट RFID टेक्नोलॉजी उन्होंने मिलिट्री सर्विसेज के लिए इन्वेंटेड की है। इस वजह से उनको फर्स्ट यूएस पेटेंट मिल गया है। उसके बाद असर्शन रीजन है। असर्शन क्या है देखिए, फेडरेटेड सर्च वाज डेवलप्ड टू प्रोवाइड सिंप्लीफाइड एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट दैट लाइब्रेरीज एक्वायर। और रीजन क्या है, इनफैक्ट सपोर्ट एक्सेस टू ई रिसोर्सेज इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब फेडरेटेड सर्च वाज डेवलप्ड टू प्रोवाइड सिंप्लीफाइड एक्सेस इन इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट दैट लाइब्रेरीज एक्वायर, मतलब ये है कि इनफेड के जरिए आप रिमोट से भी एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने रीजन क्या दिया है, इनफेड सपोर्ट्स एक्सेस टू ई रिसोर्सेज इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। इस वजह से वह करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। लेकिन ये जो है ये करेक्ट सेंटेंस है, असर्शन एंड रीजन करेक्ट है, लेकिन इनफेड क्या है, द इंडियन एक्सेस मैनेजमेंट फेडरेशन मैनेजेस द ट्रस्ट बिटवीन ऑल पेरेंट पार्टीज इंक्लूडिंग मेंबर इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिशर। इनफेड क्या है, या इनफेड के जरिए हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। मान लो अगर आपके पास इनफेड का अकाउंट है, जैसे मैं कॉलेज लाइब्रेरियन हूँ और यूनिवर्सिटी का ओनर्स जो है उन्होंने अगर मुझे क्रेडेंशियल्स दिए, और इनफेड के जरिए मैं उनके ओनर्स का वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का एक्सेस मैं फेडरेटेड सर्च के जरिए कर सकता हूं। ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। लिस्ट 1, लिस्ट 2, मेटाडेटा एंड एग्जांपल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा, प्रिजर्वेशन मेटाडेटा, टेक्निकल मेटाडेटा, यूज मेटाडेटा। तो यहाँ पे लिस्ट 2 में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द फिजिकल कंडीशन, तो ए में 4 है एडमिनिस्ट्रेटिव। अब कलर कोड देखेंगे यहाँ पे, मेटाडेटा एडमिनिस्ट्रेटिव मेटाडेटा का काम क्या है, सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर डिजिटाइजेशन। प्रिजर्वेशन मेटाडेटा वह है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द फिजिकल कंडीशन ऑफ रिस्पॉन्सेस। टेक्निकल मेटाडेटा ट्रैकिंग ऑफ सिस्टम रिस्पॉन्स टाइम, और यूज मेटाडेटा सर्च लॉग। अब मेटाडेटा क्या होता है, डेटा अबाउट डेटा। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन डेटा अबाउट डेटा क्या है, जैसे मार्क 21 का यूज किया। ओके, तो जहां उन्होंने कहा कि टाइटल आपको लिखना है, तो टाइटल आपने किताब की लिख दी, तो यह डेटा अबाउट डेटा हुआ। तो यहाँ फील्ड जो आपने फिक्स की है, तो वहां वह हुआ डेटा, और उसका जो आपको ओपैक में सर्च हो रहा है, ये सब मेटा डेटा की वजह से तो हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मार्क 21 या कोहा या एनी सॉफ्टवेयर इन द लाइब्रेरी which are being used for the automation, it is the example of metadata. Arrange the following based on their evolution, not evaluation, evolution। तो evolution यानी कब आया था, कब पैदा हुआ था। ठीक है, arrange the following based on their evolution, पहले क्या आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया। तो पहले आया हो लाइब्रेरी कोऑपरेशन, ठीक है, उसके बाद रिसोर्स शेयरिंग, उसके बाद नेटवर्किंग, और सबसे लास्ट में कंसोर्शिया डेवलप हुआ,
और आज हम उसमें उसका यूज कर रहे हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ ओरिजिन. तो यहाँ पे ये जो FRBR है उसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है, मार्क 21 है, RDA है. दीज आर द स्टैंडर्ड ऑफ कैटलॉगिंग. तो 1997 में FRBR आया, 1984 में CCF आया, 1987 में मार्क 21 आया और RDA 2010 में. उसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है. तो सबसे पहले तो CCF आया, उसके बाद मार्क 21, उसके बाद FRBR और उसके बाद RDA. Which commission recommended the national census of all libraries? 2022 में नेट में पूछा गया यह प्रश्न है. ये जो नेशनल नॉलेज कमीशन है, इन्होंने नेशनल सेंसस ऑफ ऑल लाइब्रेरीज की रिकमेंडेशन दी थी. इस वजह से उत्तर होगा नेशनल नॉलेज कमीशन और NKC. NKC के बारे में आप विकिपीडिया से भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हैं. इन विच ईयर SMS वॉज टेस्टेड? SMS का फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस है. तो SMS कब पहले टेस्ट हो गया? विच ईयर SMS वॉज टेस्टेड? इन 1992. MIS इज ए मोजाइक ऑफ. ये नेट वाले हमेशा यही करते हैं कि सिंपल बात को कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में पेश करते हैं. मतलब ये होता ये है कि MIS का फुल फॉर्म भी आप लिखेंगे तो भी चल जाता है, लेकिन उन्होंने ये मोज़ेक शब्द दे के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है. लेकिन मुझे पता है आप तो ब्रिलियंट है. मोज़ेक ये शब्द आपको पहले पता होगा, मोज़ेक यानी फुल फॉर्म, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे. तो MIS इज अ मोज़ेक यानी कम टुगेदर मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम. क्वेश्चन is very easy question they have asked in previous year's question paper. During the Mughal period, the head librarian was known as. मुगल पीरियड में हेड लाइब्रेरियन को किस नाम से जाना जाता था? और उनको हेड लाइब्रेरियन को निजाम इस नाम से जाना जाता था. फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट enacted in the pre-independent India. तो पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट पहला जो हुआ वो कहाँ पे हो गया था? कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट करवीर वाचन मंदिर में हुआ था. और ये करवीर वाचन मंदिर ये पब्लिक लाइब्रेरी है और आज भी कोल्हापुर में है. कभी आएंगे कोल्हापुर तो अवश्य विजिट कीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 81. Arrange the following search engines according to their year of launching in an ascending order. सर्च इंजन जो है उसके ईयर ऑफ लॉन्चिंग जो है, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से जानकारी मिलेगी कि फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है. तो याहू यह पहला आया था सर्च इंजन. उसके बाद आया हॉटबॉट, उसके बाद हॉटबॉट आया, उसके बाद गूगल, उसके बाद साइरस और उसके बाद बिंग. इस प्रकार का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यहां पे याद रखेंगे. प्रश्न ये है, डाइटी हैज अबॉर्डेड द प्रोजेक्ट एंटाइटल्ड सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर डिजिटल प्रिजर्वेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज. तो प्रोजेक्ट का नाम क्या है? सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर डिजिटल प्रिजर्वेशन. किसको दिया गया था ये प्रोजेक्ट? सीडैक पुणे और सीडैक नोएडा. किसने दिया था? डाइटी इंस्टीट्यूट ने दिया था. डैश डैश इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट enables the sharing and use of creativity and knowledge through free legal tools.
अब मुझे एक बात बतानी होगी आपको यहाँ पे कि जब हम नेट के क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो नेट का कोई भी क्वेश्चन उठा लो, मतलब कई मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस in first reading they don't understand. While you read for second time, for third time, for fourth time, then little you are going to understand that question. So I would suggest you that very carefully you read the question of UGC नेट एग्जाम. सेट में ऐसे नहीं होता है. सेट में क्या होता है, सेट में अगर एक बार भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. दो बातें यहाँ पे हैं. प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो डिफिकल्ट लेवल जो होती है वो बहुत हायर लेवल होती है. और दूसरी बात, जो लैंग्वेज का यूज होता है नेट में वो भी थोड़ा हायर लेवल का होता है. इस वजह से हमें एक ही ऑप्शन बचता है. आप जितना ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतनी अच्छी तरह से आपको प्रश्न समझ में आएंगे. तो ये प्रश्न क्या है देखिए, डैश इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इनेबल्स, जो आपको देता है द शेयरिंग एंड यूज ऑफ क्रिएटिविटी एंड नॉलेज थ्रू फ्री लीगल टूल्स. तो आपको फ्री लीगल टूल्स वो देता है जो कि आपकी क्रिएटिविटी और नॉलेज को आप शेयर कर सकते हैं. वह कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? अब तो ये प्रश्न बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि हमें पता है लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन्स बहुत सारे ऐसे लाइसेंस देता है जो कि ओपन सोर्स का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है क्रिएटिव कॉमन्स. और यहाँ आंसर भी वही है, क्रिएटिव कॉमन्स इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इनेबल्स द शेयरिंग एंड यूज ऑफ क्रिएटिविटी एंड नॉलेज थ्रू फ्री लीगल टूल्स. तो क्रिएटिव कॉमन्स की जानकारी मैंने यहाँ पे दी है, आप उसे बाद में पढ़ के भी समझ सकते हैं. Who said, where is the information? We lost in data, knowledge lost in information and wisdom lost in knowledge. ये कहा था बहुत ही बड़े फिलोसोफर है टीएस इलियट. इन्होंने कहा था, ये जो यूके से है, इंग्लैंड से है, टीएस इलियट. इन्होंने बहुत सारी इंग्लिश पोएम लिखी है, प्ले राइट लिखे है, लिटरेरी क्रिटिक लिखा है. जाते जाते मैंने आपको टीएस इलियट के बारे में भी थोड़ा बहुत समझाया या बताया. ये क्वेश्चन है देखिए, द फर्स्ट यूएस पेटेंट फॉर एन एक्टिव RFID टैग विद रीराइटेबल मेमोरी वाज अवॉर्डेड टू मारियो कार्डुलो. आई थिंक इट हैज बीन रिपीटेड, so I will skip here. Read the given passage. I will not read this, but I would say some trick here. First question क्या है देखिए, रीडिंग कल्चर ऑफ चिल्ड्रन शुड बी कल्टिवेटेड. रीडिंग कल्चर ऑफ चिल्ड्रन शुड बी कल्टिवेटेड. आपका रीडिंग कल्चर जो है ड्यूरिंग देयर अर्ली एज. लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो दूसरी लाइन आप अगर पढ़ेंगे तो देखिए, वी शुड एंश्योर स्टूडेंट्स बिकम फ्लुएंट एंड एंगेज रीडर्स फ्रॉम एन अर्ली एज. मैंने जो आपको कहा था कि जो पैराग्राफ में ही आपको आंसर्स ढूंढने हैं, अपने मन से आपको आंसर्स नहीं दे रहे हैं. तो इस प्रकार ड्यूरिंग देयर अर्ली एज, दिस इज द आंसर. व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ रीडिंग कल्चर? इम्प्रूव लाइफ चांसेस ऑफ इंडिविजुअल्स. यहाँ आप देखेंगे ये लास्ट में जो लाइन उन्होंने दिए है, ओनली कंपोनेंट्स रीडर्स विल बी एबल टू एक्सेस द वंडर्स ऑफ द करिकुलम एंड दस इम्प्रूव देयर लाइफ चांसेस. तो यही आंसर है उस प्रश्न का, इम्प्रूव देयर लाइफ चांसेस ऑफ इंडिविजुअल्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू बिल्ड रीडिंग कल्चर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल, क्या एसेंशियल है आपका रीडिंग कल्चर बिल्ड करने के लिए? आपके डेडिकेशन और परसिवरेंस की जरूरत है. तो यहां देखिए, ये देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है,
उसमें से चौथी लाइन देखिए, creating a reading culture should not be the responsibility of an individual. It takes dedication, perseverance and effort. लेकिन आंसर में उन्होंने एफर्ट को ड्रॉप किया है और खाली डेडिकेशन और परसिवरेंस को रखा है. उसके बाद क्रिएटिंग रीडिंग कल्चर ब्रीड्स, तो यहाँ पे केपेबल एंड कमिटेड रीडर्स, तो यहाँ पे भी आप केपेबल एंड कमिटेड रीडर्स यहाँ बीच में जो हाइलाइटर मैंने रखा लगाया वहाँ पे उसका आंसर है. इस प्रकार से आपको उसी पैराग्राफ में ये आंसर्स ढूंढने हैं. यह ट्रिक है. मोशन बॉक्स इज अ वीडियो शेयरिंग कम्युनिटी. बिब्लियोफाइल इज अ लवर ऑफ बुक्स. ये लवर ऑफ बुक्स ये हमें लगता है कि ये नहीं होगा, लेकिन यही है आंसर. बिकॉज बिब्लियोफिलिया और बिब्लियोफाइल और बिब्लियोफिलिज्म is the love of books. A bibliophile or biblioworm is an individual who loves and frequently reads, collects books. Question है, who categorized the information source into conventional, non-conventional and neo-conventional micro documents? It has categorized by Ranganathan. पॉल ऑटलेट किससे संबंधित है? पॉल ऑटलेट यूनिवर्सल यूडीसी से संबंधित है. हेनरी लाफोंटेन और पॉल ऑटलेट यूडीसी. उसके बाद फर्मंट राइडर किससे संबंधित है? इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन. जॉर्ज बुल रोल ऑपरेटर से संबंधित है. और मिनीसियस लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग से संबंधित है. आइडेंटिफाई द ऑड वन वर्ड ऑफ लर्निंग. दिस इज डायरेक्टरी एंड अनदर आर डेटाबेसेस. इनिस, एग्रिस, मेडलाइन एंड इंस्पेक्ट. इनिस जो है वह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी वियन्ना में है. एग्रिस एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रोम में है. मेडलाइन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन यूएसए में है. इंस्पेक्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यूके में. द फर्स्ट एडिशन ऑफ यूडीसी 1905, ये तो सबको पता है. डीडीसी जैसे एडिशन पहली 1876 में निकली थी. Who enunciated the subject classification? J.D. Brown. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेयल, इन्होंने जो दिए हैं उसमें भी खास तौर से आपको ध्यान में रखना है स्प्रे डी कॉप्स, जिसका अर्थ होता है टीम यूनिटी. और उसके बाद यूनिटी ऑफ ऑर्डर और डिवीजन ऑफ वर्क, ये सबसे अहम है. उसके बाद पोस्ट कॉप, ये कंसेप्ट किसने दिए है? लूथर गुलिक इन्होंने दिए है. मेंटल रिवोल्यूशन, यह कंसेप्ट किसने दी है? F.W. Taylor has given the concept of mental revolution. एडवर्ड डेमिंग, इनका जो PDCA साइकिल है, प्लान डू चेक एक्ट वाला, तो ये इससे संबंधित ये क्वेश्चन है. आई विल शेयर दिस PDF to everyone. Don't worry, you will read afterwards. And question answer, when zero-based budgeting system was first appeared in 1970, 1970 में जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम फर्स्ट अपीयर्ड हुआ था. CPM क्रिटिकल पाथ मेथड इज डेवलप्ड बाय डू पॉइंट कंपनी, इन्होंने CPM का डेवलपमेंट किया है. डैश डैश इज द नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन. अब आपको ये भी प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन इज डैश डैश, informal communication, formal communication, whatever. So informal communication, it is grapevine communication is informal, unofficial and spontaneous communication. The question है, the conceptual framework in which research is conducted is called research design. ये जो conceptual framework होता है उसे क्या कहते हैं? रिसर्च में रिसर्च डिजाइन कहते हैं. IBID, तो IBID जैसे इन्होंने मैच द फॉलोइंग में बहुत सारे ऐसे लेकिन मैंने उसे सीधा कर दिया है. आई बिड इन द सेम पेजेस, ऑप्सिट सेम एज अबाउ, लॉक्सिट सी वाइड इन द वर्क साइटेड. ये उसके मीनिंग्स है और ये उसके शॉर्ट फॉर्म्स है. अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ईयर ऑफ ओरिजिन और ब्रैडफोर्ड्स लॉ, लॉटकास लॉ, स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी एंड जीप्स लॉ. तो सबसे पहले आया हुआ था स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी, उसके बाद लॉटकास लॉ, उसके बाद जीप्स लॉ एंड उसके बाद ब्रैडफोर्ड्स लॉ. H index is an index
that attempts to measure the productivity and impact of the published work. Scientist. Okay, the answer is work of scientist. साइंटिस्ट का जो वर्क है वह एच इंडेक्स इंडिकेट करता है. Thank you so much. I think this session, I don't know how it is going on, but I hope it is fruitful for you and it may helpful for the coming your NET examination. Thank you so much, organizers. Thank you so much, dignitaries who were presented for this session. I must thanking you, each one who is here for this national webinar from the all over country, like Arunachal Pradesh, Gujarat, Goa, and so many other states, and especially Maharashtra candidates or participants. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Atul sir, हाँ सर बोला. question and answer session. हाँ घेऊया ना सर. कोणाला क्वेश्चन विचारायचा असेल तर विचारू शकता. एनी क्युरीज आस्क फॉर अतुल सर. All participants